ಅವ್ರ ಮಗ್ಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕುಂತಾರ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಪಾಲಿವಾಲ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸುಂದರ, ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರ. ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪಿಂಪಲಾಂತ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಸಿಗುವಲ್ಲೂ ಗಿರಾಕಿ ಅವು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಹೊರಗಿನವು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪಿಂಪಲಾಂತ್ರಿ ಅವರು. ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅವರ 16 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ತೀರ್ಕೊಂತಾಳೆ. ದುಃಖ, ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ವಿಷಾದ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆದ ದುಃಖ, ವಿಷಾದ ಹೇಗೆ ವಿಕಾಸದ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಪಾಲಿವಾಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಅವರು 16 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಕಿರಣ್, ಆಕೆ ತೀರ್ಕೊಂತಾಳೆ. ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಮಗಳು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಮಗಳ ನೆನಪಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮಗಳ ನೆನಪಿಗೆ ಒಂದು ಕದಂಬ ಗಿಡ ಹಚ್ತಾರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಅವರು ಪಂಚಾಯತಿ ಸರ್ಪಂಚ್ ಇದ್ರು ಪಿಂಪಲಾಂತ್ರಿದು. ಮಗಳು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಯಾವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟತೈತಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟತಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ 111 ಗಿಡ ಹಚ್ಚುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಊರಾಗ. ನಮ್ಮ 222 ಕಡಿತೀವಿ ನಾವು ಹಚ್ಚ ಪೈಕಿ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟತೈತಿ 111 ಗಿಡ ಹಚ್ಚೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಅವರ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇಡುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಿರಣ್ ಠೇವಣಿ ನಿಧಿ ತಂದ್ರವ್ರು. ಮತ್ತು ಹಂಗ ಅಲ್ಲ, ಆ FD ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೊಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಂದರೆ ಯಾವ ಮಗುವಿಗೂ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವರು ಸರ್ಪಂಚರಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ 111 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಮಕ್ರಾನ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ರಾನ್, ಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಹಡ್ಡಿ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತೋ ಅಂಥಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 3.5-4 ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಂಥ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರು, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರವರು. ಆ ಪಿಂಪಲಾಂತ್ರಿ ಮಾಡೆಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪಿಂಪಲಾಂತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿಂಪಲಾಂತ್ರಿ ಮಾಡೆಲನ್ನು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ 900 ಫೀಟ್ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೂ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು 50 ಫೀಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ, ಜಲರಕ್ಷಣೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ನನಗವ್ರ ಬದುಕು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಂಪಲಾಂತ್ರಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ PUC ಕಲ್ತಂಥ ಸರ್ಪಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ IAS ಆಫೀಸರ್ ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವಂಗಾತಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವರ ಮಾಡೆಲ್ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಂಥವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು, ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಮಾಡೆಲ್. ಅವರಷ್ಟು ಪರಿಸರ,
ಪ್ರಕೃತಿ, ನೀರು, ಜಲ ಇವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಪಾಲಿವಾಲ್ ಅವರು ನಮಗೊಂದು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರು. ಅವರು ದೂರದ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಅಭಿಮಾನ ಅವರಿಗೆ. ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಪಾಲಿವಾಲ್ ಅವರು ಪೂಜ್ಯರು, ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪೂಜ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು. भारत माता की, सनातन धर्म की, गवी सिद्धेश्वर यात्रा महोत्सव कैलाश मंडप मंच पर उपस्थित श्री गवी सिद्धेश्वर महाराज स्वामी जी, गुरु सिद्धेश्वर राज गोपाल महाराज स्वामी जी, श्री निरंजनानंद पुरी महाराज स्वामी जी, सम्मानित मंच और इस मंच पर विराजमान सभी संत, सामने विराजे हुए मेरे पिता समान बुजुर्ग, युवा साथी, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, हिंदी तो समझ में आती है ना आपके? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इतने बड़े धार्मिक मंच पर इतनी बड़ी यात्रा में मुझे क्यों बुलाया, ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से मुझे यहां बुलाकर आपका आशीर्वाद मुझे मिला है और इतने बड़े धर्म सभा को संबोधित करने का, बात करने का अवसर मुझे दिया है, ऐसा क्या कारण रहा है? मैं राजस्थान के एक ऐसे गांव से आता हूं जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है और ये सिसोदिया वंशज जो निकला ना, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये भी सिसोदिया वंशज हैं, नेपाल नरेश। और ये सिसोदिया वंशज इस पगड़ी को धारण करते हैं और ये पगड़ी कभी किसी के सामने झुकी नहीं है, सिर्फ संतों के सामने झुकी है। मैंने भी सोचा मैं भी आज मेवाड़ी पगड़ी पहनकर धर्म सभा में जाऊंगा, मेरे मेवाड़ का भी मान दिखेगा। साथियों, मैं राजस्थान का एक गांव है पिपलांतरी, आपने सुना होगा, कि जहां पर बेटी के जन्म पर पेड़ लगाए जाते हैं और खुशियां मनाई जाती है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। वो एक ऐसा गांव है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा मार्बल का संगमरमर का खनन क्षेत्र है, जहां पर उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। मैं उसी गांव में पैदा हुआ। ऐसी विशाल पहाड़ियां, जहां हम बैठे हैं इस पहाड़ी के ऊपर, ऐसी पहाड़ियां मेरे गांव में भी थी। सफेद सोना था, पर हमने कभी सोचा नहीं कि इस तरह का सफेद सोना हमारे गांव से छिन जाएगा और पीछे रहेगा सिर्फ प्रदूषण, बीमारियां। लोग बाहर मजदूरी करने जाते थे, गांव में शांति थी, गांव में पति पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता गांव में रहते थे।
एक समय ऐसा आया कि उस गांव पर लोगों की नज़र पड़ी, खान माफियाओं की नज़र गई, सरकारों की नज़र गई और उस मार्बल का खनन शुरू हुआ। बहुत पानी था हमारे गांव में, बहुत पेड़ थे, पर और उसके साथ साथ बहुत सुकून था। 40 सालों में उस गांव में इतना खनन हुआ कि वहां पर एक भी पेड़ नहीं रहा। एक समय ऐसा आया कि लोगों ने पेड़ों को काट के कोयला बनाया। एक समय ऐसा आया कि खान पर काम, माइनिंग के काम करने वाले मजदूरों ने उन पेड़ों को खरीद कर पेड़ों को कटवाया, जलाया और फिर माइनिंग करने वाले लोगों ने वहां पर खनन किया जिससे पेड़ कटे, फिर खनन का मलबा डाला, उससे पेड़ कटे। और एक समय ऐसा आया कि उस गांव में लोगों को ये सपना दिखाया गया कि माइनिंग की वजह से बहुत फायदा होगा, लोग बहुत आत्मनिर्भर होंगे, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। मिला भी सही कुछ लोगों को, पर गांव ऐसा हो गया कि वहां उस गांव में पीने का पानी नहीं है, एक पेड़ नहीं। गांव के लोग अपनी जमीनें बेचकर दूसरे शहरों में चले गए। उस दौरान मैं उस गांव का सरपंच बना और सरपंच बनने के पीछे यही मेरी मंशा थी कि मैं इस गांव को वापस खड़ा करूं, इस गांव के लिए कुछ करूं, क्योंकि ये गांव मेरा तीर्थ स्थान है, जहां पर मेरा जन्म हुआ है, मेरी मां का अंतिम संस्कार हुआ, जहां पर मेरे पिताजी का जन्म हुआ, मेरी कई पीढ़ियां जिस गांव में पैदा हुई है, उससे बड़ा तीर्थ स्थान इस पूरी धरती पर मेरे लिए नहीं हो सकता है। मैंने गांव के लोगों से बात की और गांव के लोगों ने मुझे सरपंच बनाया। सरपंच बनने के बाद मैंने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और मेरे घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। मेरा परिवार मेरे काम धंधे से चलेगा, मेरी खेती बाड़ी से चलेगा, पर मेरी पंचायत में आने वाला पैसा हर हाल में मेरी ग्राम पंचायत में लगेगा। और गांव वालों को भी एक प्रतिज्ञा दिलाई कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी के सामने मांगेंगे नहीं, काम ऐसा करके दिखाएंगे कि सरकार की पॉलिसी बनाने वाले नीति निर्धारक हमसे आकर पूछे कि हमने नीति तो पूरे देश के लिए बनाई थी, पॉलिसी तो पूरे देश के लिए बनाई थी, योजना तो हमने पूरे देश के लिए बनाई थी, पर यहां पर इतना सुंदर काम कैसे हो गया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। और गांव वालों ने, हमने मिलकर यह तय किया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस गांव को वापस खड़ा करेंगे, गांव को पुनर्जीवित करेंगे, गांव में हरियाली लाएंगे, गांव में पानी लाएंगे, गांव की बेटियों को बचाएंगे और इस प्रकृति के साथ काम करके और ऐसा अनूठा एक मिसाल पेश करेंगे कि हमारे गांव को भी लोग पूछे। मैं अन्ना जी के गांव में भी गया, मैं और भी बहुत सारे पूरे देश की ग्राम पंचायतें अच्छी थी। मैं मेघालय के शिलोंग के पास एक मालव्यांग गांव है जहां वहां पर बहुत अच्छा काम हुआ है, वहां भी गया मैं और जाकर देखा कि मैं क्या कर सकता हूं मेरे गांव के लिए। और सरकार की योजनाओं पर मैंने अध्ययन किया और हमने काम शुरू किया। उस दौरान मैंने देश का पहला एयर कंडीशन पंचायत भवन बनाया कि मेरे गांव का कोई भी गरीब अमीर, महिला पुरुष कोई नीचे नहीं बैठेगा, सब बराबर बैठेंगे। और बाद में 2006 में 7 के समय मेरी बेटी की डेथ हो गई। बहुत गर्मी, महामारी और डिहाइड्रेशन से मेरी बेटी मेरे हाथ से चली गई। तो हमने तय किया कि इस गांव में बेटियों पर काम करेंगे और बेटियों के नाम पर पेड़ लगाएंगे। हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाएंगे और पौधे भी ऐसे लगाएंगे जिससे लोगों को फल मिले, जिससे लोगों को रोजगार मिले, जैसे आंवला, आम, जामुन, बांस, ऐसे पेड़ लगाएंगे जिससे लोगों को आने वाले समय में उससे गांव आत्मनिर्भर हो। गांव में बेटी का जन्म होगा। गुरुजी ने वैसे पूरी बात बता दी, मुझे कन्नड़ समझ में नहीं आती है, पर मैं समझ रहा था कि पिपलांतरी के बारे में गुरुजी ने सब कुछ बता दिया है। उस गांव में बेटी के जन्म पर बेटी को आत्मनिर्भर करेंगे। उसी दिन आने वाले समय में बेटी किसी के भरोसे नहीं रहे, इतना पैसा उसके जन्मदिन पर, उसके जन्म पर हम बैंक में, पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा कर डाल देंगे कि बेटी किसी के भरोसे नहीं रहे। मुझे कई लोगों ने पूछा कि आपको पद्मश्री क्यों मिला,
मुझे यहां भी आकर ऐसा लगता है कि मुझे यहां क्यों बुलाया गया। मैं मेरे मन में चिंतन करता हूं कि मुझे इसलिए बुलाया गया होगा कि मैंने बेटियों को आदर्श मानकर काम किया है, मैंने बेटियों को पेड़ों से जोड़कर काम किया है, मैंने बेटियों को प्रकृति से जोड़कर काम किया है। मेरे गांव का हर व्यक्ति ये बड़े गर्व से कह सकता है कि इस प्रकृति से मैं लेता हूं, उससे ज्यादा वापस देता हूं। ये काम मेरे गांव के गरीब लोगों ने, गांव की विधवा, विकलांग, कमजोर महिलाओं ने करके दिखाया है और ऐसा काम पूरे देश की हर एक ग्राम पंचायत को करना चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि गांव का पटवारी भी मेरी बात मानेगा, पर देश के प्रधानमंत्री जी मेरे कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि पालीवाल जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, अब आप नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती पर काम कीजिए। जब मुझे पद्मश्री मिला तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे कहा कि श्याम सुंदर जी कैसे हो आप, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा महामहिम आप मुझे नाम से कैसे जानते हैं? बोले पालीवाल जी आपने जो काम किया है उसकी वजह से मैं आपको जानता हूं और आपका केबीसी वाला पूरा एपिसोड मैंने देखा है। कहने का मतलब यह है कि हम दिन प्रतिदिन ऐसा कोई ना कोई काम करें जिससे हम लोगों के बीच में आदर्श कायम कर सकें। हम कचरा करके हर कहीं डाल देते हैं, हम गंदगी यहां से उठाकर वहां डाल देते हैं, तो गंदगी रहेगी ना। हम पेड़ कटते हुए देखते हैं, हम बेटियों के साथ दुराचार होता देखते हैं, इस प्रकृति के साथ अत्याचार होता हम देखते हैं और बोलते नहीं है, तो फिर हमसे बड़ा अपराधी कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इस आदत को अगर हम बदल लें तो मैं ये मानता हूं कि आप भी लोगों के लिए आदर्श बनेंगे और हमारा देश आदर्श बनेगा, हमारा गांव आदर्श बनेगा, तो फिर हमारा देश भी आदर्श बन जाएगा। मुझे कई लोग पूछते हैं आदर्श गांव क्या होता है? मैं उनसे कहता हूं कि आदर्श गांव नहीं हो सकता है, आदर्श नागरिक होंगे। जिस गांव के नागरिक आदर्श होंगे वो गांव आदर्श होगा। जिस गांव के नागरिक अपने गांव के लिए समर्पण की भावना पैदा करेंगे, समर्पण करेंगे, वो गांव आदर्श होगा। और जिस दिन हमारा गांव आदर्श हो गया उस दिन हमारा देश आदर्श हो जाएगा। मैंने इन संतों से यही सीखा है कि अपने घर से कुछ नहीं लाएंगे, देश के लिए समर्पित जितना कर सके उतना करेंगे। मैं भी ग्रस्त जीवन में हूं, मुझे भी मेरा परिवार चलाना पड़ेगा, पर मैं कम से कम इतना तो करूं कि मैं इस प्रकृति से लूं जितना वापस दे दूं। मैं भ्रष्टाचार नहीं करूं, मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं मेरे काम के प्रति वफादार रहूं। ये काम हमने करके दिखाया है। इस वजह से देश का पहला पद्मश्री सरपंच होने का अवसर मिला। ये कितनी बड़ी बात है कि हमने बेटियों को प्रकृति से जोड़कर इस प्रकृति के साथ काम किया है। इसकी वजह से पद्मश्री और आज गवि सिद्धेश्वर महाराज जी के इस बड़े कार्यक्रम में, इस यात्रा में हम जैसे लोगों को बुलाकर, गुरुजी मेरे पास में बैठे हैं, ऐसे लोगों को बुलाकर आप लोगों से रूबरू करवाने का काम किया जा रहा है। मैं ये मानता हूं ये बहुत बड़ा काम है। एक व्यक्ति काम करता है तो उससे सीखकर दूसरा करे, तीसरा करे, चौथा करे, और एक दिन ऐसा है कि हम सब लोग इस प्रकृति के प्रति वफादारी दिखाएं, इस प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी दिखाएं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इस कुदरत ने, इस प्रकृति ने मेरा हाथ थामा है और मेरे हाथ से लाखों लाखों पौधे लगवाने का काम किया है। मेरे हाथ से पूरे देश को और पूरे विश्व को बेटियों के प्रति सम्मान करने का एक मैसेज देने का काम किया है। इसलिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इस प्रकृति ने मेरा चयन किया और मुझे यहां तक पहुंचाया है। मित्रों, आप लोग भी इस तरह से काम करके और आगे बढ़ सकते हैं। हम जितना हमारे धर्म के प्रति, हमारे गुरुजनों के प्रति, हमारे माता पिता के प्रति, हमारे समाज के प्रति जितना भाव दिखाते हैं, उतना भाव एक बार प्रकृति के प्रति भी दिखा दीजिए। मैं मानता हूं कि ये कोविड जैसी बीमारियां हमसे बहुत दूर रहेगी। आपने देखा होगा कोविड के समय में हम लोगों ने ऑक्सीजन की कीमत समझी है, हमने हमारे गांव की कीमत समझी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो गांव छोड़कर शहरों में चले गए थे, वो वापस जब गांव में आए तो उनने कहा कि भाई मेरा गांव ही मेरे लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। पर मैंने मेरे गांव के लिए इतने साल कुछ नहीं किया, पर अब मेरे गांव के लिए समर्पण की भावना पैदा करूंगा। और उन्हीं लोगों ने मेरे गांव में पुराने विवाद
पुराने मकान, पुराने रास्ते, जेब से पैसा दे दे के उस गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। ये व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर गांव का मुखिया, परिवार का मुखिया, गांव का सरपंच अगर इस तरह से काम करे तो मैं मानता हूं कि देश की जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं वो सरसब्ज हो सकती है, प्रकृति के साथ चल सकती है, और उन सरपंचों को भी ऐसे महान संतों के चरणों में बैठने का अवसर मिल सकता है। मैं गुरुजी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक मामूली व्यक्ति को, जिसने 50 साल की उम्र में 10वीं पास की, 12वीं भी की, कॉलेज की, और मुझे कई यूनिवर्सिटियों ने डॉक्टरेट दिया है, कि पालीवाल जी समुदाय के सामने, इस धर्म संसद, धर्म सभा के सामने मेरी बात रखने का जो अवसर दिया है, मैं ये मानता हूं कि निश्चित तौर पर इसका असर होगा। विशेषकर सरपंचों को यह बात अपनानी पड़ेगी और आने वाले समय में जनप्रतिनिधियों का ऐसा चुनाव करे जो प्रकृति के साथ चले, जो धर्म के साथ चले, जो ईमानदारी के साथ चले। ऐसे जनप्रतिनिधियों को निचले स्तर पर चुनकर उनको गांव के को विकसित करने का अवसर देना चाहिए। आपने यहां बुलाया, सम्मान दिया, बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर इतने बड़े विद्वान संतों के सामने बोलने की जो हिम्मत कर पा रहा हूं वो सब मेरे गांव की गरीब महिलाएं और प्यारी बच्चियों और पेड़ों की देन है कि मैं इनके सामने मेरी बात रखने का मुझे हौसला मिला है और मुझे अवसर मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारत माता की, संत समाज की, अपने अपने माता पिता की। ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಪಾಲೆ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಾಗೋದು ಬೇಡ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಊರಿಗೊಬ್ಬರಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ